Hello students, you are welcome to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will learn about recurrence relation. First of all, we will discuss what is recurrence relation. We will see what is the degree and order of a recurrence relation. And in this video lecture, we will solve some homogeneous recurrence relation and we will see the method for solving homogeneous recurrence relation. So here we go to start our topic. So what is a recurrence relation? A formula which defines any term of a sequence in terms of any number of its previous terms, right? It means अगर आप किसी भी sequence के किसी particular term को उसके previous term की form में लिख पाए तो वो formula हमारा recurrence relation कहलाता है और in other words we can say which express any term of a sequence as a function of its previous term is called recursive and the relation is called recurrence relation, right? For example, हमने कहा किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म के फंक्शन की फॉर्म में लिख पाए तो हम उसे रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सीक्वेंस को कंसीडर करें. दिस इज अ सीक्वेंस 3 8 13 18 एंड सो ऑन, राइट? दिस इज अ सीक्वेंस. नाउ इसका जो रिकरेंस रिलेशन है हम देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस कितना है. 3 एंड 8 में 5 का डिफरेंस. 8 एंड 13 में कितना डिफरेंस है? 5, राइट? इन द सिमिलर वे 13 एंड 18 में कितना डिफरेंस है? 5. सो इन सब में 5 5 का डिफरेंस है. सो लेट्स से मुझे कोई भी ए nth टर्म लेना हो. लेट्स से दिस इज a1 a2 a3 a4, राइट? एंड सो ऑन. इस सीक्वेंस में ए nth टर्म है. सो अगर मुझे ए nth की वैल्यू लिखनी है सो ए एन विल बी ए एन माइनस वन प्लस वन. उसके प्रीवियस टर्म में प्लस 5 ऐड कर दे तो आपको ए nth टर्म मिलेगा. इट मीन्स आप इसके nth टर्म की वैल्यू अगर लेनी है तो आप n माइनस वन टर्म में 5 ऐड कर दीजिए, राइट? So this will be called a recursive formula and relation will be called recurrence relation. I hope that is clear to you. Now what is the order of recurrence relation? Order of a recurrence relation, किसी भी हम और किसी भी recurrence relation का order find out करने के लिए लेट्स से अभी हमने ए एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, इसको हम ए आर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वाई एन. वो आपके वेरिएबल पर डिपेंड करता है. वी कैन से वाई एन. सो यहाँ पर ये जो सब्सक्रिप्ट लगा है, राइट? सो हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट एंड लोएस्ट सब्सक्रिप्ट का डिफरेंस आपका ऑर्डर कहलाता है, राइट? सो ऑर्डर ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन और डिफरेंस इक्वेशन, इसको हम डिफरेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, राइट? रिकरेंस रिलेशन को ही डिफरेंस इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है. So order of a recurrence relation is defined to be the difference between highest and lowest subscript of fx or ar or yn. So we will discuss it with example. What is the order of a recurrence relation? So consider the example. You are given a equation, a recurrence relation ar plus 3ar minus 1 0. So in this case highest subscript is r and the lowest subscript is r minus 1. दोनों का डिफरेंस निकालें वो आपको 1 मिलेगा. सो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन. In the similar way, consider this example. This recurrence relation is given in the terms of fx. So यहाँ पर highest subscript है x plus 2 and the lowest subscript is x. So दोनों का difference हमने निकाला, ये आपको मिलेगा 2. So it is a second order difference equation or second order recurrence relation. Now degree. What is degree of a recurrence relation? It is the highest power of fx or ar or yn, right? सो हाईएस्ट पावर इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या मिल रही है? हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 मिल रही है. y की पावर 3 h plus 3, राइट? सो डिग्री विल बी 3. So I hope that is clear to you. Order and what is degree of a recurrence relation. Now, so students अगर हम recurrence relation की बात करते हैं तो ये दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. First is called homogeneous and another one is non-homogeneous, right? So इस example से समझते हैं what is homogeneous and non-homogeneous recurrence relation. So homogeneous recurrence relation में no term is dependent on variable n, right? n पर कोई भी term dependent नहीं होता है तो homogeneous equation होगी. अदरवाइज इक्वेशन आपकी नॉन होमोजीनियस होगी. तो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं. इस इक्वेशन में ए आर इक्वल टू ए आर माइनस वन प्लस आर स्क्वायर. सो हियर वन टर्म दैट इज डिपेंडेड ऑन आर, राइट? सो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस है. इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? लोअर हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट में से लोएस्ट सब्सक्रिप्ट माइनस कर दीजिए, दैट इज विल बी 1 एंड डिग्री विल बी 1. नाउ consider the second example. In this
here this term is dependent on r, right? r पर dependent है ये term, so it will be called non homogeneous of order क्या हो जाएगा इसका 2 and degree will be 1. And if we consider the third example, in this example there is no term that is dependent on r, right? So this equation will be called homogeneous, right? और order क्या होगा r minus 2, so you will get the order 2 and degree 2. So I hope that is clear to you. Now we will discuss the method for finding the solution of homogeneous recurrence relation. So let us consider the homogeneous differential equation or linear recurrence relation with constant coefficient. Let's say this is a recurrence relation. C0 AR plus C1 AR minus 1 and so on plus CK A के subscript में R minus K equal to 0. So here it is homogeneous because no term is there that is dependent on r, right? So हम कहते हैं स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन हम एज्यूम करते हैं लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म कैपिटल ए अल्फा की पावर के, राइट? इस फॉर्म का है, राइट? तो वेयर अल्फा 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैपिटल ए इज अ कांस्टेंट जिसको कि हम बाउंड्री कंडीशन से इक्वेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैपिटल ए की वैल्यू आप बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट करते हो। ये भी आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। सो अवर मेथड इज वी विल गेट द सॉल्यूशन ए अल्फा की पावर के, राइट? सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन टू मेक इसे, ताकि क्योंकि हम कहते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स हैं तो रूट्स उसे सेटिस्फाई करते हैं। सो हियर इफ द सॉल्यूशन इज दिस, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए आर एज कैपिटल ए अल्फा की पावर आर। ए आर माइनस 1 टर्म को हम बोल सकते हैं कैपिटल ए अल्फा की पावर आर माइनस 1। ए आर माइनस 2 को प्लेस कर सकते हैं कैपिटल ए अल्फा की पावर आर माइनस 2 एंड सो ऑन इन द सिमिलर वे। ए आर माइनस के विल बी और कैपिटल ए अल्फा की पावर आर माइनस के। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो यू विल गेट दिस। अब इस इक्वेशन में से स्टूडेंट हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इस इक्वेशन में से हम कैपिटल ए अल्फा की पावर आर कॉमन लिया जा सकता है, राइट? क्योंकि ये सब में कॉमन है। सो we will take it outside, right? So आपने क्या कॉमन लिया यहाँ से? कैपिटल ए अल्फा की पावर आर माइनस के कॉमन ले लिया। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, राइट? कॉमन लेने के बाद अब ये जो आपकी इक्वेशन है, क्योंकि इस ये तो हमारा सोल्यूशन का टाइप है, राइट? सो इट कैन नॉट बी जीरो। अब दो प्रोडक्ट टर्म है तो यानी कि ये वाली इक्वेशन जीरो होगी, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट टर्म में से कोई एक टर्म तो जीरो होना चाहिए। सो ये इक्वेशन आपकी जीरो होगी। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डिग्री के, राइट? डिग्री के की आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। देन यू विल फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि अगर कोई इक्वेशन है तो उसके रूट्स होंगे कुछ पर्टिकुलर। नाउ योर सॉल्यूशन विल बी डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ रूट, राइट? So here I am explaining the types of roots and solution, right? So if you get distinct root, let's say 2 and 3, right? दो रूट्स आपको मिले, एक 2 है, एक 3 है, तो सोल्यूशन जो होगा ए आर वो आपको a1 अल्फा 1 की पावर r, a2 अल्फा 2 की पावर r एंड सो ऑन मिलेगी, वेयर a1 a2 and ak are constant. Next is if you get equal roots, then the solution will be given as a1 ब्रैकेट में आप लिखेंगे a1 a2 r एंड सो ऑन। आप जब आगे इससे बढ़ाएंगे तो a2 के साथ r की पावर 1 मिल रही है। इन द सिमिलर वे व्हेन a m-1 होगा तो r की पावर m-2 होगा एंड a m के साथ r की पावर m-1 होगा। एंड ब्रैकेट के बाहर आप अल्फा जो आपका इक्वल रूट्स हैं अल्फा की पावर r लिखेंगे, राइट? वेयर अल्फा इज द रूट, राइट? if any root is repeated m times, this will be solution। अगर कोई भी रूट m times repeat हो रहा है तो आप इस तरह का solution देंगे। Next is if you get complex root, then you will give the solution such as this, right? Where complex root are alpha plus I beta and alpha minus I beta, right? तो इस केस में p की पावर r a1 cos r theta plus a2 sin r theta। And if you get equal complex root, then in that case you will find the solution as p की पावर r a1 plus a2 r cos r theta plus a3 plus a4 r sin r theta। This will be our solution where theta will be tan inverse beta upon alpha and p की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो नाउ आपको ये मेथड क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस सो दैट you will be cleared
with this concept. So consider this question. You are asked to solve the following recurrence relation and the equation is this. So हमारा जो first step था वो क्या था students? We have to put AR equal to capital A alpha की power R, right? अगर AR capital A alpha की power R है तो उस केस में AR plus 1 क्या हो जाएगा? Capital A alpha की power R plus 1, right? Now you will put these values into this equation, right? So you have put, आपने यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है. अब आप इन दोनों में से कैपिटल ए अल्फा की पावर आर कॉमन ले सकते हैं तो आपको रिमेनिंग बचेगा अल्फा माइनस 1.5, राइट. सो ये टर्म तो आपको जीरो नहीं हो सकता तो उस केस में अल्फा माइनस ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी. सो अल्फा माइनस 1.5 विल बी जीरो, अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1.5. उस केस में आप ये जो सोल्यूशन है आपका इसमें अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, राइट. सो यू विल गेट ए आर कैपिटल ए अल्फा की पावर आर इज द सोल्यूशन. सो यू विल put the value of alpha and you will get the solution, right. अब यहाँ पर ये कांस्टेंट मिल रहा है a, right. इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते थे अगर आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन होती, बट देयर इज नो बाउंड्री कंडीशन, सो यू विल लीव एज इट इज, राइट. ये आपका एज इट इज रहेगा. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो. सो हियर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन, राइट. सो हाउ यू विल सॉल्व इट? Here we can see that first of all you have to put AR equal to capital A alpha की power R. So in the similar way जब आप वैल्यू पुट करेंगे AR की जगह आपने पुट किया कैपिटल A अल्फा की पावर R. सो AR माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैपिटल A अल्फा की पावर R माइनस 1 प्लस 6AR माइनस 2 की जगह आपने लिखा 6A अल्फा की पावर R माइनस 2. So here boundary conditions are given. So you can calculate the value of a1 and a2. जो भी आपके वेरिएबल्स मिलेंगे उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं. सो यहाँ से आपने कॉमन लिया अल्फा की पावर आर, सो यू विल गेट दिस एंड यू विल गेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा जीरो के बराबर रखते हैं, देन यू विल गेट द रूट्स, राइट. सो नाउ अब आपको रूट्स को एग्जामिन करना है. रूट्स आपके किस तरह के हैं? रूट्स आपके हैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट, राइट. एंड लेट मी शो यू द सोल्यूशन कि डिस्टिंक्ट रूट के लिए सोल्यूशन क्या होता है. So for distinct roots, you will give the solution as follows. AR equal to capital A1 alpha की पावर R, A2 alpha 2 की पावर R and so on. इस तरह से आप solution देते हैं, right? So हमें जो question में आपके मिले थे वो मिले थे roots 2 and 3. So there were two roots. So now there are two roots that are distinct. So we will put the value, right. So alpha मिला आपको 3 and 2. So distinct roots. So the solution is given by AR equal to capital A1 alpha की power R, alpha 1 की power R. Let's say alpha 1 is your 2 and alpha 2 is your 3 plus A2 alpha 2 की power R. So you can put the value of alpha 1 and alpha 2. So आपने put किया A1 2 की power R plus A2 3 की power R. Now you are given boundary condition A0 A1 equal to 3. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में आपको ये सॉल्यूशन मिला है, आप इसे इक्वेशन ले लीजिए, लेट्स से कैपिटल ए, राइट. इस इक्वेशन में आप पहले, क्योंकि आपको ए जीरो गिवन है तो आप एक बार आर की वैल्यू जीरो पुट कीजिए. फॉर ए जीरो इक्वल टू 3 आर आपको जीरो पुट करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा ए जीरो. एंड जब आप आर पुट करेंगे कैपिटल ए इक्वेशन में तो ए वन के साथ 2 की पावर आर है, यानी कि 2 की पावर जीरो हो जाएगा, दैट विल बी 1, राइट. ये टर्म आपका 1 हो जाएगा तो आपको मिलेगा A1 प्लस A2. इन द सिमिलर वे 3 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा. सो A1 प्लस A2 एक इक्वेशन आपको ये मिली. एंड नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज A1 इक्वल टू 3, राइट. सो फॉर A1 इक्वल टू 3 R आपको 1 पुट करना पड़ेगा. सो कैपिटल ए इक्वेशन में जब आप R 1 पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 3 इक्वल टू 2A1 प्लस 3A2. ये आपकी इक्वेशन 2 है. अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. So A1 आपका आया 6 and A2 आया -3. Now the required solution will be, आप इक्वेशन 1 में A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दीजिए. Now this will be your solution, right. 6 2 की पावर R -3 3 की पावर R. So this will be the solution for this recurrence relation. Now let's discuss another question. In this question we are given a equation
and we have to find out the characteristic equation in the same way as we have found in the previous questions. So you will put AR equal to a alpha की power r and a r minus 1 को पुट करेंगे a अल्फा की पावर r minus 1, स्मॉल a r minus 2 की जगह आपने पुट किया कैपिटल A अल्फा की पावर r minus 2 equal to 0. So you will get the characteristic equation, and then now the roots are 2 and 2, right? So these are the equal roots, right? So equal roots अगर आपके m बार repeat हो रहे हैं, so your equation was, let me show you what will be the solution in this case, क्योंकि solution आपका roots पे depend करता है. So in the case of equal roots, you will get the solution as AR equal to A1 plus A2R and so on. M तक आप इस इक्वेशन को लेकर जाएंगे एंड ब्रैकेट के बाहर होगा अल्फा की पावर R, where M is the number of times the root is repeated, right? So this will be the solution. So now we can write the solution in our question. So you will write solution as A1 plus A2R 2 की पावर R, right? तो अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन a0 इक्वल टू 1 a1 इक्वल टू 6. सो a0 इक्वल टू 1 के लिए आप यहाँ पर r की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा, a1 की वैल्यू मिली. एंड देन a1 इक्वल टू 6 के लिए आप यहाँ पर r1 पुट करेंगे, तो r1 पुट करने पर आपको ये इक्वेशन मिलेगी. अब आप a1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज a1 आपका 1 आ चुका है, राइट? सो यू विल पुट एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a2. So student ये आप calculate कर सकते हैं on your own. So when you will calculate this, you will get A2 equal to 2, right? And then you can write the solution. You will write AR equal to capital A1 की वैल्यू आई आपकी 1, capital A2 की वैल्यू आई 2. So 1 plus 2R and bracket में 2 की पावर R, right? So this was the solution. And जब आपने वैल्यू कैलकुलेट की तो आपको 1 and 2 मिला, capital A1 A2. So this will be the required solution of this characteristic equation, right? I hope that is clear to you. And one more question we will discuss in detail. So the next question is, consider this question, right? In this question you have to find the solution. So first of all, our method is to find characteristic equation. Our characteristic equation is this, right? इस केस में हमें रूट्स नहीं मिल रहे, तो we will apply the formula minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. So we'll get the complex roots, right? We will get 2 plus minus 3i. So this is these are the roots. So इस केस में complex root के केस में जो solution होता है वो होता है p की पावर r. Solution आपको मिलता है p की पावर r a1 cos r theta plus a2 r sin theta. This will be the solution in case of complex roots, right? So अब क्या कीजिए आप 2 plus 3i अल्फा प्लस आई बीटा को हम कंपेयर करते हैं p cos थीटा प्लस आई पी साइन थीटा से, राइट? सो जब हम कंपेयर करेंगे LHS को RHS से तो उस केस में यू विल फाइंड दैट p cos थीटा इक्वल टू 2 एंड p sin थीटा इक्वल टू 3, राइट? अब आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी. यू विल गेट p इक्वल टू अंडर रूट 13 एंड टेन थीटा विल बी, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, p cos थीटा p sin थीटा को p cos थीटा से, यू विल गेट tan थीटा equal to 3/2 and in that case you will find theta equal to tan inverse 3/2. Now आपको p भी मिल गया है, आपको थीटा भी मिल गया है. You can put the value in this equation. So ये आपको मिलेगा 13 की पावर r/2 because p था अंडर रूट 13. So 13 को आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 की पावर होल r होगा. So you can write 13 की पावर r/2 a1 cos r theta, theta की जगह tan inverse 3/2 plus a2 sin r tan inverse 3/2. So this is the required solution for this question. So students, यहाँ पर हमने recurrence relation discuss किया और हमने homogeneous recurrence relation को solve करने का method देखा कि हम किस तरह से solve करते हैं. Now in the next video lecture we will discuss the solution for non-homogeneous recurrence relation. Right? Thank you so much for watching this video.